Hello everyone and welcome to the DSA with Java series by Pullen Academy. In today's video, we will discuss what is asymptotic analysis. What is asymptotic analysis? What is order of growth? So पहले हम बात करेंगे what is asymptotic analysis. So asymptotic analysis होता क्या है? Basically, if we go with the definition, then it measures the order of growth. It measures the order of growth of time or space taken by an algorithm in terms of input size. अब इसका मतलब क्या है? पहले तो it's a measurement of what? It's a measurement of order of growth of time and space. अब टाइम का अगर ऑर्डर ऑफ ग्रोथ मेजर करने को जाए तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चला जाता है, एंड ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ऑफ स्पेस हुआ तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड ऑक्सिलरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है. एक एल्गोरिथम के ऊपर जो एनालिसिस हम करते हैं वो डिफाइन करता है. मतलब प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी बोला था कि there are several ways to implement the solution of a problem, right? There are several ways, like linear search, binary search का एग्जांपल मैंने दिया था कि अगर डेटा शॉर्टेड हो तो binary search और डेटा अनशॉर्टेड हो तो linear search. So there are several ways to implement an algorithm, but how to measure which algorithm is performing best? We can measure them using asymptotic analysis. Now asymptotic analysis में एक फंक्शन या प्रोग्राम या फिर एल्गोरिथम, कुछ भी बोलो, वो हम जो लिखते हैं उसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ हमें मेजर करना होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और स्पेस. अब ये ऑर्डर ऑफ ग्रोथ होता क्या है? बेसिकली द ऑर्डर ऑफ ग्रोथ डिस्क्राइब्स हाउ क्विकली द रनिंग टाइम और मेमोरी यूसेज ऑफ एन एल्गोरिथम इंक्रीजेस एज इट्स इनपुट साइज इंक्रीजेस. अब इस बात को थोड़ा इजी वे में समझते हैं. तुमने एक फंक्शन को लिखा है, सम ऑफ इन नेचुरल नंबर्स. एज्यूम तुमने 1 + 2 + 3 + ... n, ये तो किया ही होगा बचपन में, सम ऑफ इन नेचुरल नंबर्स. सो देयर इज अ शॉर्टकट टू फाइंड द सॉल्यूशन व्हिच इज n + 1 / 2. वी कैन राइट द सॉल्यूशन लाइक दिस. अब इस पर्टिकुलर कोड को अगर हम एक फंक्शन में कन्वर्ट करें या फिर एक कोड में कन्वर्ट करें तो there are several ways to do it. I will show you 3 different ways to implement the same formula, but उन तीनों का order of growth different होगा. कैसे? उसके लिए हमें एग्जाम्पल से समझते हैं. फर्स्ट, जो सभी जानते हैं कि डायरेक्टली हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन को लिख देंगे यहाँ पे. Now there are 3 independent operations in this code: multiplication, addition and division. If you are doing any type of mathematical operation or any type of comparison, then the order of growth of that particular expression is constant. Means it will take constant time. So, इस particular code का order of growth constant होगा. Why? Because there is no loops. Only fixed number of arithmetic operations are happening. So, whatever will be the value of n, the time will not increase. तो इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ it will look like this. The graph will look like this. Suppose इस एक्सिस में मैं इनपुट साइज n को ले रहा हूँ और x एक्सिस में मैं t को ले रहा हूँ, टाइम. ठीक है. So it will look like this, constant. So whatever the value of n means the input size, it will always take constant amount of time. ठीक है. ये तो हो गया सबसे easy part. But there are 2 more implementations. Just like ये एग्जाम्पल को समझो. यहाँ पे हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है its sum equals to 0 और उसमें I equals to 1 से लेके in तक हमने ट्रैवर्स किया एक लूप में, और उसके बाद we are returning the sum. Now what will be the order of growth? Means अगर order of growth के डेफिनेशन को समझे, so इनपुट साइज इंक्रीज करने के साथ साथ ये फंक्शन का जो रनिंग टाइम होगा वो कैसे इंक्रीज करेगा? It will take linear time because the loop will run up to 1 to n. If n increases, the loop will take more time. Right? So the order of growth of this particular code will be linear. और उसका ग्राफ कैसा होगा? The graph will look like this. It will be like this. मतलब क्या?
जितना आपका इनपुट साइज बढ़ेगा उतना ही टाइम भी बढ़ता चला जाएगा, बट इट विल बी लीनियर. नाउ देयर इज अनदर इम्प्लीमेंटेशन, वो है ये वाला. ये इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा डिफरेंट है. जस्ट लाइक द प्रीवियस एग्जांपल वी हैव द सम, राइट, बट वी हैव two loops here. Means one loop which is the outer loop, another loop is the inner loop. ये जो loop है ये 1 to n तक चलेगा, 1 to n तक, और इसके अंदर वाला loop 1 से i तक चलेगा. तो देखते हैं ये बिहेव कैसे करेगा. इसके लिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज हमारे पास दो लूप्स हैं. वन इज वन इज द आउटर लूप, वन इज द इनर लूप. ठीक है, तो अगर आउटर लूप एक बार रन किया, अगर आउटर लूप i इक्वल्स टू 1 के लिए एक बार रन किया, तो इनर लूप कितनी बार रन करेगा? एक बार. देखो why? Because it's running for i equals to 1, it will run up to 1 because it's less than equals to i. So it will run only one time. But for i equals to 2, if we take i equals to 2, the inner loop will run 2 times. इसका मतलब it will run for 1, it will run for 2, it will run 2 times. So ऐसे करके ही अगर हम i equals to n तक जाए, so there is a pattern, it will run n time, right? Now एक काम करते हैं, बचपन में एडिशन तो किया ही होगा, तो हम एक काम करते हैं, इस पर्टिकुलर चीज का एडिशन निकालते हैं, which is 1 plus 2 plus 3 plus ... n, which is the same sum of n natural numbers, n plus 1 divided by 2, which is approximately n square by 2 plus n by 2. मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन का ऑर्डर ऑफ ग्रोथ n स्क्वायर ही होगा if we ignore the lower order terms and the constants, right? So इस पर्टिकुलर केस का ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्वाड्रेटिक होगा. मतलब अगर तुम्हारे पास नेस्टेड लूप हुआ तो इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम का जो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ है वो क्वाड्रेटिक है. एंड इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ विल बी लाइक दिस. द ग्राफ विल लुक लाइक दिस. और इस ग्राफ से ही तुम समझ सकते हो कि फॉर वेरी लिटिल इनपुट साइज द टाइम इज इंक्रीजिंग रैपिडली. मतलब क्या? इनपुट साइज अगर सेम हुआ तो डिफरेंट एल्गोरिथम विल टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एल्गोरिथम. तो तुम देखो कि अगर मैं इस कोड को रन करूं फॉर अ वेरी स्मॉल नंबर, जस्ट लाइक 5 जावा सी test.java, मैं 5 के लिए तीनों कोड रन कर रहा हूं, जावा टेस्ट, राइट, इट्स गिविंग मी 15 एवरी टाइम. सो तीनों के लिए आउटपुट सेम है, बट ये तीनों कोड में सबसे ऑप्टिमाइज्ड कोड ये वाला होगा बिकॉज इट्स टेकिंग कॉन्स्टेंट टाइम. दिस वन इज लेस ऑप्टिमाइज्ड because it's taking linear time and this one is the least optimized code. So इस तरह से हम किसी कोड का ऑर्डर ऑफ ग्रोथ डिटरमाइन कर सकते हैं. So that's the concept of order of growth. और ये ऑर्डर ऑफ ग्रोथ एनालाइज करने के टाइम पे हमने जो टोटल एनालिसिस किया, इसे ही हम शॉर्ट में कहते हैं एसिम्प्टोटिक एनालिसिस. So I hope you understand at least the asymptotic notation and the order of growth. Now what are the different types of order of growth calculation? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बिगो नोटेशन, थीटा नोटेशन, बिग ओमेगा नोटेशन और ऑक्सिलरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब चीजें धीरे धीरे कवर करेंगे. बट एटलीस्ट आई होप इस वीडियो के हेल्प से आपका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ एंड एसिम्प्टोटिक एनालिसिस ये दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. अगर इस वीडियो के बाद भी आपका कोई क्वेश्चंस रहा रिगार्डिंग दिस ऑर्डर ऑफ ग्रोथ एंड एसिम्प्टोटिक एनालिसिस, प्लीज कमेंट इट डाउन. I will clarify the question in the chat box. Okay? Thank you. Thanks for watching and subscribe to Boolean for more amazing videos.